31 runs, you cannot justify that. भाई तू बोल्ड हो जा, तू हिट विकेट हो जा, बट तू ऐसे आउट मत हो। केएल राहुल को स्टार्ट मिलता है, बट केएल राहुल को बड़ी इनिंग्स में कन्वर्ट नहीं कर पाते। जसप्रीत बुमराह 10 on 10, नो डिबेट, किसी को कोई क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। I'll leave this team midway because they don't deserve my services. The Border Gavaskar Trophy has just got over. Australia won the series by 3-1. A great series for the Australian cricket team because they were desperate to have their hands on the Border Gavaskar Trophy. It has been about 10 years since they have laid their hands on Border Gavaskar और finally वो सपना Australian team का पूरा हुआ है. For Indian team, it was a series of lot of ups and downs, more downs than ups, but there were some good individual performances. In this video, what we are going to do is we're going to rate each and every player individually. This is more like a report card where Harshit, I have with me Harshit Bisht, and Harshit is going to rate all the players out of 10 and then obviously give a reason as to why that player has been rated with that number. We have 17 players who have featured in this series, who have played in this series. We are not rating the players who were on the bench because there is nothing much to rate about them. The players who played in the 11 throughout this series in different test matches, some played in all 5, some in 3, some in 2, some in 1. We are going to rate them individually. Harshit, let's start with the captain himself, the one who decided to step down in the last match, Rohit Sharma. See, for Rohit Sharma, it was a forgetful series. Yeah. He played 3 matches, out of on 2 matches as number 7 and number 6, and in 1 match as an opener, but could only manage to score 31 runs. The kind of player Rohit Sharma is, the kind of performance we have seen with him in the past few years, 31 runs, you cannot justify that. Yeah. Even Australian bowlers, even Indian bowlers scored more runs than that. Akashdeep scored 31 runs in 1 innings. Rohit Sharma played 5 innings and scored 31 runs. It was a forgetful series for him. And there's nothing to talk about Rohit Sharma in this because कुछ किया ही नहीं है, तो क्या रेट करोगे आप? रेट करने के लिए मैं, क्योंकि लास्ट मैच में उनको रियलाइज हो गया कि यार भाई मेरे से हो नहीं रहा है, मुझे स्टेप आउट करना चाहिए। अब उसके पीछे चाहे जो भी उनका रीजन रहा हो, तो बस उस एक रियलाइजेशन के लिए आई वुड रेट हिम 0.5 out of 10 बिकॉज बैटिंग से कुछ नहीं किया। एक डिसीजन ने आपके लिए, चलो आपके लिए दूसरे बैटर को मौका बना दिया। दैट वाज द ओनली गुड थिंग दैट रोहित शर्मा डिड इन दैट सीरीज। सो फॉर मी इट वाज अ 0.5 on 10 performance by Rohit Sharma. Yeah. Now the other senior statement from the team, the king himself as we all call him, Virat Kohli. See, Virat Kohli ने इस सीरीज के 5 टेस्ट मैचेस के लिए he scored 190 runs. Out of 190 he scored 100 runs in 1 innings itself. ठीक है, बाकी 8 इनिंग्स में वो 8 बार एक ही तरीके से आउट हुए, बैक टू बैक। मी एज अ फैन और यू एज अ फैन, हम लोग फ्रस्ट्रेट हो चुके थे कि यार हमें भाई तू बोल्ड हो जा, तू हिट विकेट हो जा, बट तू ऐसे आउट मत हो। एक ही तरीके से 8 बार आउट होना was a symbolic performance by विराट कोहली। रोहित शर्मा का अगर मैं 0.5 दे रहा हूँ क्योंकि उसने 31 रन बनाए, तो विराट कोहली ने कुछ ज़्यादा कुछ खास नहीं किया। ठीक है, 4 टाइम्स ज़्यादा रन बनाए, तो मैं रोहित शर्मा के 4 टाइम्स ज़्यादा पॉइंट्स दूंगा। दैट इज 2 out of 10. 2 out of 10. No, fair enough. Only 1 century, and apart from that, 90 odd runs in 8 innings, if I'm not wrong. That's not something good. Yashasvi Jaiswal, young opener. See, for Yashasvi Jaiswal, it was his first series, and by the standards of his first series, he scored well. He scored 391 runs, which शायद इंडियन ओपनर्स में मैं कॉपी कर रहा था, शायद जितने इंडियन ओपनर्स हैं उसमें शायद 4th हाईएस्ट है जिसने अपने फर्स्ट टूर में इतने रन बनाए हैं। ही स्कोर्ड अ सेंचुरी, अ गुड सेंचुरी इन पर्थ, जिसकी वजह से शायद हम टेस्ट मैच जीते। उसके बाद ही स्कोर्ड 180 रन्स इन बोथ द इनिंग्स ऑफ द बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच। ठीक है, कपल ऑफ ओकेजन्स में गॉट आउट फॉर अ डक एज वेल, कपल ऑफ ओकेजन्स ही गॉट आउट अर्ली एज वेल, but looking at it was his first Australian tour, he did well. So for me, it was a 7 on 10 performance by Yashasvi Jaiswal. 7 of 10, absolutely justified. He was looking good on the pitch. KL Rahul, the opener. KL Rahul got a good start in this series. In the first test that was played in Perth, he looked good. He scored 20 odd runs in the first and 77 in the second. He looked good. That is why he was retained as an opener in the next 2 matches as well. And he scored a half century in the 3rd test match as well. But again, again like so many other players in the Indian team, KL Rahul को start मिलता है, but KL Rahul उसको बड़ी innings में convert नहीं कर पाते। That has been a trend with him for quite some time now, and वही सीरीज में भी देखने को मिला। तो एक सीरीज उसमें बहुत सारा रन बना के अपनी प्लेस को जस्टिफाई कर सकते हैं। KL Rahul फेल हुए हैं उस चीज को करने में, डिस्पाइट द 2 good knocks that he has played. So for me, according to me, KL Rahul का जिस तरह से लग रहा था उस हिसाब से उन्हें डिसअपॉइंट ही किया है। तो 5 on 10 performance by KL Rahul. 5 on 10 for KL Rahul, the prince of Indian cricket, Shubman Gill.
प्रिंस तो नहीं है वो, आप उनको ये टाइटल अगर आप देते हैं, आपके फेवरेट प्लेयर हैं, तो आप हटा दीजिए, क्योंकि वो प्रिंस जैसा कोई काम नहीं किया। अगर आप उनको सोचते हैं वो विराट कोहली के लेगेसी को आगे ले जाने वाले हैं, तो मुझे तो नहीं लगता कि वो क्रिकेट की फील्ड में बात कर रहे हैं। आप शायद सोशल मीडिया पे बात कर रहे होंगे, वो बात अलग है। क्रिकेट की फील्ड में ऐसा नहीं लगा है। आपको 3 टेस्ट मैचेस खेलने का चांस मिला, आपने नंबर 3 पे बैटिंग करा, आपके पास एक अपॉर्चुनिटी था कि आप बहुत ज़्यादा रन बनाएंगे, आपने नहीं बनाया। 93 रन इन 3 टेस्ट मैचेस बाय अ प्लेयर कॉल्ड एज शुभमन गिल, हु इज 25 years old, who is young, who is seen as the next big thing. It was a forgetful series for him, and I would like to rate him 2 out of 10 because 93 रन शुभमन गिल को मैं जस्टिफाई नहीं कर सकता। Absolutely, the way he was getting out was horrible dismissal, especially in the Sydney Test. Rishabh Pant, the Spider-Man Rishabh Pant. See, Rishabh Pant played a 61 run knock of 33 balls in the second innings of Sydney Test, which was good. It was vintage Rishabh Pant, जिस तरह का Rishabh Pant जानते हैं, बॉलर्स को डोमिनेट करना, छक्के मारना, चौके मारना, अपोजिशन कैप में हलचल मचा देना। बट वो एक इनिंग्स थी सिर्फ, उसके अलावा जो बाकी के 8 इनिंग्स थे, वहाँ ऋषभ पंत का कोई ऐसा इम्पैक्ट नजर नहीं आया। ठीक है, बात कर सकते हैं फर्स्ट इनिंग्स ऑफ पर्थ टेस्ट में थोड़ा सा एक इम्पैक्टफुल नॉक खेला था, बट वो एक वन ऑफ था थिंग। उसके बाद बाकी जितने में चांसेस मिला, बहुत चांसेस थे कि आप मैच जिता सकते थे, मैच बचा सकते थे, आप कुछ नहीं कर पाए। मेलबर्न टेस्ट की तो बात ही नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि मेलबर्न टेस्ट में जिस तरह के दोनों इनिंग्स में वो आउट हुए, इट वॉज वेरी हॉरेबल। तो ऋषभ पंत के स्टैंडर्ड से, ऋषभ पंत की फॉर्म के हिसाब से, जिस तरह की फॉर्म में वो गए थे, फॉरगेटफुल सीरीज 4 out of 10 ऋषभ पंत, क्योंकि वो लास्ट इनिंग 4 out of because of that last innings. Yeah. And now the debutant Nitish Kumar Reddy. See, out of all the players that made their debut in this series, either for India, either for Australia, because Australia के लिए कुछ debutants थे, Sam Constas थे, McSweeney थे, लास्ट में ड्यू वेबस्टर थे, इंडिया के लिए नितिश कुमार रेड्डी, हर्षद राणा, काफी प्लेयर्स ने डेब्यू किया। बट जितने भी प्लेयर्स ने सीरीज में डेब्यू किया, नितिश कुमार रेड्डी उस सीरीज में सबसे अच्छे लगे। क्वेश्चन मार्क्स थे उनकी प्लेयर्स को लेकर कि ये बैटर है, बॉलर है, क्या खिला रहे हैं आप। उन्होंने बैटिंग में भी कंट्रीब्यूट करके दिया, उन्होंने बॉलिंग में भी कंट्रीब्यूट करके दिया। 3 ओकेजन्स में इंडिया के टॉप स्कोरर थे वो इनिंग्स में, इनफैक्ट 4 ओकेजन्स। ठीक है, सेकंड टेस्ट की दोनों इनिंग्स में वाज अ टॉप स्कोरर, फर्स्ट इनिंग में, फर्स्ट टेस्ट में वाज अ टॉप स्कोरर, देन मेलबर्न में आपने एमसीजी में सेंचुरी बनाया एज अ नंबर 8 बैटर और 7 बैटर, which was a big thing. So by नितिश रेड्डी स्टैंडर्ड, क्योंकि फर्स्ट टेस्ट सीरीज थी, उस बंदे ने काफी इंप्रेस किया। 298 रन बना के सेकंड हाईएस्ट रन स्कोरर थे इंडिया के लिए सीरीज में, 5 विकेट भी लिए। 7-10 performance by Nitish Kumar Reddy as well. Absolutely, a brilliant century at MCG, something that he'll remember by for his life. And now I think the only player that we don't even need to discuss, but just because it is mere formality, is Jasprit Bumrah. 10 on 10. नो डाउट, 32 विकेट्स, जिसको आज तक कभी इंडियन फास्ट बॉलर ने कभी करा ही नहीं है। मोस्ट विकेट्स बाय एन इंडियन बॉलर इन सीरीज आउटसाइड इंडिया। 32 विकेट्स बाय जसप्रीत बुमराह जस्टिफाइज, राइटफुली प्लेयर ऑफ द सीरीज थे। ज़्यादा डीप डाइव करने की जरूरत नहीं, बिकॉज हम इस सीरीज में अगर कहीं पे भी खड़े थे तो इट वॉज जस्ट बिकॉज ऑफ जसप्रीत बुमराह। उन्होंने बैटिंग तो बॉलिंग तो छोड़िए, बैटिंग में भी आपको कंट्रीब्यूट करके दिया है। ठीक है, आपका फॉलो-ऑन बचाया है ब्रिस्बेन में, और आपको एक ऐसा टारगेट तक पहुंचाया जहाँ के बाद आप लीड ले सकते थे सिडनी में। तो जसप्रीत बुमराह ये सीरीज नहीं होते, हम 5-0 वाइट वॉश थे, और हम तो ऑस्ट्रेलिया को आउट भी नहीं कर पाते किसी भी इनिंग्स में। तो इट वाज जसप्रीत बुमराह 10 on 10, नो डिबेट, किसी को कोई क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। इंडियन, ऑस्ट्रेलियन या दुनिया भर के फैंस इस चीज से एग्री करेंगे। I would love to deduct 2 points from Bumrah just because he didn't go back home midway through the series. Because if I was Bumrah, I'll leave this team midway because they don't deserve my services. तो उनको वापस चले जाना चाहिए था, but okay, 10 on 10, I fully agree. His bowling partner with the new ball, मोहम्मद सिराज ने इस सीरीज में 20 विकेट लिए हैं, बट 20 विकेट कब मिल गए, कहाँ मिल गए, कैसे मिल गए, किसी को नहीं पता। बिकॉज कभी भी थ्रेटनिंग नहीं लगे, कभी नहीं ऐसे नहीं लगा कि यार ये अपोजिशन टीम में तहलका मचा देगा या प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। बुमराह के जब भी बॉलिंग करने आते थे ऐसा लगता था कि ऑस्ट्रेलिया के लिए प्रॉब्लम है। सिराज के लिए कभी नहीं लगा, चाहे वो न्यू बॉल हो, ओल्ड बॉल हो। एक ही चीज़ जो सिराज की इस पूरी सीरीज में हाईलाइट थी, वो उनकी ट्रैविस हेड से फालतू की लड़ाई थी, फालतू का एग्रेशन था, जिसकी कोई नीड नहीं थी। तो बाय सिराज, डिस्पाइट उन्होंने 20 विकेट लिए हैं, विच इज़ a big feat in a test series away from 20 विकेट लेना, बट डिस्पाइट दैट सिराज की परफॉर्मेंस 4 out of 10 थी सीरीज में। आप आर्ग्यू कर सकते हैं, बट उससे ज़्यादा मैं उसको दे नहीं सकता। तहलका उन्होंने मचाया, लेकिन अपने ड्रेसिंग रूम में मचा दिया, वो थोड़ा उल्टा हो गया उनसे। आकाशदीप को आप थोड़ा सा लेट इंट्रोड्यूस करा, आपको शायद सेकंड टेस्ट खिलाना चाहिए था आकाशदीप को। आकाशदीप ने अपनी 3rd टेस्ट मैच और 4 टेस्ट मैचेस खेला, थोड़ा कभी कभार अनलकी रहे, विकेट ज़्यादा मिले नहीं, बट उस बंदे ने जो विकेट नहीं मिले उसको उसने बैट से कंट्रीब्यूट करके दिखाया। एज अ नंबर 11 बैटर 31 रन बना के उसने आपके लिए फॉलो-ऑन बचाया ब्रिस्बेन में, विच उस टाइम पर बहुत इंपॉर्टेंट था। बिकॉज ब्रिस्बेन में अगर आप हार जाते तो आपके लिए बाकी 2 टेस्ट मैचेस और मुश्किल हो सकते, शायद जो 3-1 था वो 4-1 हो जाता।
सो वो वाला सिचुएशन था, तो आकाशदीप को उस बैटिंग परफॉर्मेंस के लिए और जो उस तरह की उन्होंने बॉलिंग ली, डिस्पाइट ज़्यादा विकेट नहीं ले पाए, बट जिस तरह से उन्होंने ऑस्ट्रेलियन बैटर्स को ट्रबल किया, उस हिसाब से आकाशदीप के स्टैंडर्ड के हिसाब से इट वाज अ 5-10 सीरीज फॉर आकाशदीप। एब्सोल्युटली ही वाज लुकिंग गुड। बस अगली बार थोड़ा पूजा पाठ करके आना पड़ेगा, किस्मत खराब है, स्किल्स अच्छे हैं, किस्मत खराब है। देन द वन मैच वंडर प्रसिद्ध कृष्णा। प्रसिद्ध कृष्णा ने सिर्फ लास्ट टेस्ट मैच खेला और प्रसिद्ध कृष्णा ने लास्ट टेस्ट मैच की दोनों इनिंग्स में 3-3 विकेट लिए। 3-3 विकेट लिए, तो वो भी तब लिए जब जसप्रीत बुमराह आपके लिए फील्ड पे अवेलेबल नहीं थे, ठीक है। तो रिस्पेक्टिव ऑफ उसने थोड़ी सी लूज डिलीवरीज डाली जहाँ पे रन्स कंसीड हुए, आई विल स्टिल रेट प्रसिद्ध कृष्णा एज अ गुड परफॉर्मर, बिकॉज उसने तब आपके लिए स्टेप अप किया जब आपके लिए सबसे बड़ा मैच विनर नहीं था फील्ड पे। 3 विकेट फर्स्ट इनिंग में लेकर आपको 4 रन की एक लीड प्रोवाइड कराई, और सेकंड इनिंग्स में अगर आपके जीतने के थोड़े बहुत भी जो चांसेस थे, तो इट वाज बिकॉज ऑफ प्रसिद्ध कृष्णा। तो फॉर मी प्रसिद्ध कृष्णा 6 विकेट 6 on 10 परफॉर्मेंस। Okay, I think the Sydney pitch assisted him with the bounce and his height, but he is still very raw for international cricket. He needs to polish himself more. Ravindra Jadeja, the all-rounder, number 1 all-rounder. सर रविंद्र जडेजा इज वर्ल्ड नंबर ऑलराउंडर फॉर ऑलमोस्ट हाफ अ डेकेड ना, ठीक है। बट ओवरसीज में मुझे समझ नहीं आता वो एज अ बैटर खेल रहे होते हैं, एज अ बॉलर खेल रहे होते हैं, एज अ फील्डर खेल रहे होते हैं, बिकॉज तीनों डिपार्टमेंट में सेम ही तरह का परफॉर्मेंस आता। अगर आप सोचें बैटिंग में भी एवरेज, बॉलिंग में भी एवरेज, तो कुछ ज़्यादा उन्होंने करा नहीं। एक सिडनी में, एक ब्रिस्बेन में जब उसका शायद पहला टेस्ट मैच था तब उन्होंने एक 50 बनाया था, बट उसके बाद उन्होंने कुछ नहीं किया। उनसे एक्सपेक्टेशंस थी कि भाई आज जो सिडनी का 3rd डे था, आप बैटिंग करने आए फर्स्ट सेशन में, आप थोड़ा सा रेजिस्टेंस दिखाएंगे ऑस्ट्रेलिया के लिए, आप इंडिया के लिए थोड़ा सा रन बना के टारगेट सेट करने में हेल्प करेंगे, अच्छा टारगेट, जल्दी आउट हो गए। मेलबर्न में भी यही किया। मेलबर्न में आपको टेस्ट मैच बचाना है, लास्ट सेशन में बैटिंग करने है, भाई टेस्ट मैच बचाना है, आप जीत तो रहे नहीं हो, आपको टेस्ट मैच बचाना है, आप क्या करा, आप आउट हो गए, अपना विकेट गिफ्ट देके चले गए। तो एज अ सीनियर स्टेट्समैन रविंद्र जडेजा का जो स्टैचर है, परफॉर्मेंस बेकार था, चाहे वो 50 है चाहे कुछ भी है। 4 on 10 परफॉर्मेंस बाय रविंद्र जडेजा। Fair enough. Washington Sundar, his bowling partner. वॉशिंगटन सुंदर ने पहला टेस्ट मैच खेला, अश्विन के ऊपर खिलाया गया, अश्विन जडेजा दोनों के ऊपर खिलाया गया। देन 4th और 5th टेस्ट मैचेस खेले। 4th और 5th टेस्ट मैचेस में उन्होंने 4 टेस्ट मैचेस में 4 टेस्ट मैच की फर्स्ट इनिंग में 50 बना के वॉशिंगटन सुंदर, वो नीतीश कुमार रेड्डी के साथ स्टैंड करके आपका मैच से आपको फॉलो ऑन बचाया था। भले ही बाद में हम टेस्ट मैच हार गए, बट फॉलो ऑन बचाया था। तो वॉशिंगटन सुंदर, और बट जितना अच्छा काम उन्होंने फर्स्ट इनिंग में किया, उतना ही खराब काम उन्होंने सेकंड इनिंग में किया। विकेट बचाना है, मैच बचाना है, 12 ओवर बचे हैं, आप क्या कर रहे हैं, आप नॉन स्ट्राइकर्स पे जा रहे हैं। आपने कहा बुमराह पहले आप खेलिए, आकाशदीप आप खेलिए, सिराज आप खेलिए, और वहाँ पे वो आउट होकर मैच खत्म हो गया। तो जितना अच्छा काम फर्स्ट इनिंग में किया, उतना ही खराब काम सेकंड इनिंग में किया। ज़रा विकेट नहीं मिले क्योंकि ज़रा बॉलिंग ही नहीं कराई, और बैटिंग में नंबर 8 पे तो ज़रा मार्जिन नहीं था कॉन्ट्रीब्यूट करने का। सो जितना मौका मिला उस हिसाब से 4.5 on 10 परफॉर्मेंस बाय वॉशिंगटन सुंदर फॉर मी। Absolutely, टेल के साथ बैट करना थोड़ा सीखना पड़ेगा उनको। And then now this is something that I don't know how to rate, because this legend called it quits midway through the series. रविचंद्रन अश्विन जो ब्रिस्बेन टेस्ट के बाद, 3rd टेस्ट के बाद वापस चेन्नई चले गए रिटायरमेंट अनाउंस करके। एक ही मैच खेले हैं सीरीज में, हाउ मच वुड यू रेट? सी अश्विन का रिटायरमेंट से आई वाज नॉट प्लीज्ड। मिडल ऑफ द सीरीज रिटायरमेंट लेके आप घर आ गए, आप घर आके भी तो घर में ही बैठे हैं ना, कुछ कर तो रहे नहीं है, वहीं बैठ जाते, ठीक है। तो मिडवे सीरीज का मैं फैन नहीं था, ठीक है। परफॉर्मेंस बार एक टेस्ट मैच खेला है, 20 ऑड रन बनाए हैं, 1 विकेट मिला, वो भी ऑस्ट्रेलिया ने गिफ्ट दे दिया क्योंकि मिचेल मार्श को लगा बैट क्लिक करके गए, बैट से बॉल निक हुआ है इसलिए वो चलते बने, आउट था नहीं, बट दे दिया उन्होंने। जितना बड़ा नाम है अश्विन का, उस हिसाब से परफॉर्मेंस ओवरसीज में मुझे नहीं याद है कब लास्ट टाइम आया था, और उस मैच में भी थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस था, ठीक है। रिटायर हो गया, वरना इस सीरीज का हो जाना चाहिए था, क्योंकि 2-3 प्लेयर्स तो होने चाहिए जो हो नहीं रहे शायद अभी। तो अश्विन का उस मैच के परफॉर्मेंस से इंटायरली बेसिस जज करना है तो 4 on 10 परफॉर्मेंस, क्योंकि रन्स बना दिए थोड़े से 20-22 रन इसलिए ज़्यादा लग रहे हैं क्योंकि बाकियों ने कुछ नहीं बनाया था उस मैच में। फेयर इनफ। हर्षित राणा ने डेब्यू किया पर्थ में, अच्छा परफॉर्मेंस था, ट्रेविस हेड को आउट किया, 3 विकेट लिए फर्स्ट इनिंग में, 1 विकेट शायद सेकंड इनिंग में था, बट उतना ही गंदा गेम था सेकंड वाला, जहां पर आपने पिंक बॉल 88 रन कंसीड किए विदाउट एनी विकेट, और आपने दोनों इनिंग में 0 बनाया। अ गुड फर्स्ट टेस्ट मैच, बट अ वेरी बैड सेकंड टेस्ट मैच। तो थोड़ा सा जो अपना अच्छा काम फर्स्ट में किया उसका दुगना आपने खराब काम सेकंड टेस्ट मैच में करके दिया। आपने ट्रेविस हेड को सेटल करने का मौका दिया, बाउंड्रीज पर बाउंड्रीज मारने का मौका दिया, जिसकी वजह से मैच आपके हाथ से हार, आप मैच हारे, और वहाँ से सीरीज का मोमेंटम भी ऑस्ट्रेलिया की तरफ शिफ्ट हो गया। सो हर्षित राणा के लिए ये जो सीरीज थी एक लर्निंग कर्व है, और उसका जो परफॉर्मेंस था इस सीरीज में, इट वाज अ 3 on 10 परफॉर्मेंस। 3 on 10 और 3 भी इसलिए क्योंकि फर्स्ट टेस्ट में थोड़ा सा अच्छा बॉलिंग किया था। 105 में इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को जब आउट किया था, हर्षित राणा की 3 मतलब क्रूशियल विकेट्स थे, ट्रेविस हेड को आउट करना वाज अ क्रूशियल विकेट। फेयर इनफ। द अदर विकेट कीपर इन द स्क्वाड, ध्रुव जुरेल।
ध्रुव जुरेल को चांस मिला, फर्स्ट टेस्ट मैच, एक ही टेस्ट मैच खेला और इसलिए प्लेइंग 11 में मौका मिला था क्योंकि रोहित शर्मा और शुभमन गिल अवेलेबल नहीं थे और क्योंकि वो बड़ी एक्सपेक्टेशंस के साथ थे। इंडिया का जो गेम था, गेम जो उन्होंने एक गेम खेला था सीरीज से पहले, वो दोनों इनिंग में 50 बनाया था, इसलिए खिलाया, बट बैटिंग में कुछ नहीं किया। पहली इनिंग में 11, दूसरी इनिंग में 1 रन, और 1 रन मुझे इसलिए ज़्यादा चुभ रहा है क्योंकि उस टाइम पे इंडिया के पास स्टार्ट मिल चुका था। आपके आगे पहले वाले बैटर्स ने रन बने, आपके बाद वाले बैटर्स ने रन बने, आपसे नहीं बने। तो भाई इंटरनेशनल क्रिकेट में यही होता है, आपको 1-2 एक आते ही चांस मिलेगा और आपने अच्छा करके दिखा दिया तो आपको फिर आपकी जगह बनेगी, नहीं करके दिखाए तो नहीं बनेगी। तो मैं डिसअपॉइंटेड था ध्रुव जुरेल के परफॉर्मेंस से और मेरे हिसाब से ध्रुव जुरेल का परफॉर्मेंस 2/10 था। Last but not the least, or least we don't know, Devdutt Padikkal. देवदत्त पाडिक्कल तो टीम का पार्ट ही नहीं थे। उनको तो ऑस्ट्रेलिया में क्योंकि शुभमन गिल अवेलेबल नहीं थे, उनको स्क्वाड में ऐड कराया, फिर मौका दिया खेलने का, नंबर 3 पे बैटिंग दी, जो उनका थोड़ा टॉप ऑर्डर बैट्समैन है, यूजुअल प्रेफर्ड पोजीशन पे खिलाया। क्या बनाया, पहली इनिंग में 23 बॉलें खेली, एक भी रन नहीं बनाया, आउट हो गया। सेकंड इनिंग में 210 रन का स्टैंड था। फर्स्ट इनिंग का केएल राहुल ने, जायसवाल ने प्लेटफॉर्म सेट करके दिया। आपने क्या किया, 80 ऑड्स बॉल खेल के 25 रन बना के अपना विकेट थ्रो करके चले गए। सो डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस बाय देवदत्त पाडिक्कल एज वेल, 2/10 बाय देवदत्त पाडिक्कल एज वेल। ठीक है, जितना ही खराब परफॉर्मेंस ध्रुव जुरेल का था, उतना ही खराब परफॉर्मेंस आपका देवदत्त पाडिक्कल का भी था। उसके बाद आपको खिलाया भी नहीं। So these were the 17 players Harshit rated. Overall, if you have to rate Indian team in this Border Gavaskar Trophy out of 10. See, if I have to rate Indian team performance in this entire series, I would rate it as 4 out of 10. And 4 में से जो मैंने 4 पॉइंट है, तो उनमें से 3 just because of जसप्रीत बुमराह। 32 विकेट्स इन सीरीज। मैंने तो अपनी लाइफ टाइम में किसी भी बॉलर को नहीं देखा ऐसा करते हुए, चाहे वो इंडियन हो चाहे वो ओवरसीज हो। अपनी होम कंडीशन पर 32 विकेट लेना एक अलग चीज़ होती है, पर बाहर जाके 32 विकेट्स लेना किसी भी सीरीज में, किसी भी कंडीशंस में बहुत मुश्किल होता है और बुमराह ने वो करके दिखाया है। सो फॉर हैट्स ऑफ टू हिम। एंड आई डोंट नो कितना उनके जो बैक स्पाज्म का जो अभी इशू है कितना सीरियस है कितना नहीं है। होपफुली ज़्यादा सीरियस ना हो और हमें वो जल्दी फील्ड में खेलते हुए नजर आए। बट अपार्ट फ्रॉम दैट सारे बैटर्स ने डिसअपॉइंट किया, एक्सेप्ट फॉर दैट सेकेंड इनिंग्स इन पर्थ, जहाँ पर केएल राहुल ने, विराट कोहली ने, यशस्वी जायसवाल ने, नीतीश कुमार रेड्डी ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया। उसके अलावा कभी भी बाकी 9 इनिंग्स जो इंडिया ने खेली, मुझे कभी भी नहीं लगा कि ये इंडियन बैटर्स इन ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस के लिए, इन ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स के लिए, ये टेस्ट क्रिकेट के लिए भी रेडी है। सब अपने विकेट्स थ्रो करके गए, 150 पे आउट हो रहे हैं, 120 पे आउट हो रहे हैं, 180 पे आउट हो रहे हैं, 180, 150 पे आउट होकर आप टेस्ट मैचेस नहीं जीत सकते। स्पेशली फर्स्ट इनिंग में आप 180, 150 मारो, आप जीत ही नहीं सकते टेस्ट मैच। और राइटफुली ऑस्ट्रेलिया डिजर्व करती है यार 3 मैच जीतना। बिल्कुल डिजर्व करती है। वो तो बारिश ने एक मैच बचा लिया, वरना 4-1 था ये सीरीज का स्कोर। 3 बार मुश्किल से 200 क्रॉस किया है इंडिया ने, तो इट इज ऑस्ट्रेलिया डिजर्व्स टू विन दिस 3-1। दे, एज यू सेड, 4-1 if that Brisbane raid had not come. But this was what we think about Team India's individual performances. What are your thoughts on this? You may also have your opinions. आपके रिपोर्ट करके आप एग्री करते हैं कि आप किसी प्लेयर को इंडिविजुअली अगर कोई रेट करना चाहे तो क्या रेट करना चाहेंगे और क्यों रेट करना चाहेंगे? कमेंट सेक्शन पे ज़रूर लिखिएगा। We'll be more than happy to read all your comments, the ratings that you give to the players, who impressed you the most, who impressed you the least, किसको देखना चाहेंगे खेलता हुआ, किसको बाहर होते देखना चाहेंगे। The comment section is there for you guys. Please write your comments. We'll be more than happy to read all your comments. And until then, do subscribe to the Cricket Mix YouTube channel. Hit the bell icon. Thank you so much, Harshit, for connecting with us and giving us this amazing, report individually of all the players. And I am pretty sure many out there would agree with you on all the ratings that you have given. Meanwhile, you guys, as I said, please subscribe to the Cricket Mix YouTube channel. Hit the bell icon. ऐसी और मैच रिपोर्ट्स, मैच रिव्यू, सीरीज रिपोर्ट्स आपको मिलते रहेंगे क्रिकेट नेक्स्ट पे। BGT चैंपियंस ट्रॉफी आ रहा है, इंडिया इंग्लैंड की सीरीज आ रही है, बहुत क्रिकेटिंग एक्शन है पूरे साल में। अभी तो सिर्फ 2025 की शुरुआत हुई है, तो आप सिर्फ क्रिकेट नेक्स्ट को सब्सक्राइब कीजिए और तैयार रहिए ऐसे और एक्शंस के लिए।